Hello everyone, in this video we'll go through the background of a poem, the title of which is Sailing to Byzantium, written by William Butler Yeats. William Butler Yeats received Nobel Prize in Literature in 1923. So you must remember it. It's a very probable question to be asked in competitive exams. In this video we'll go through the background of Sailing to Byzantium, and in the next video we'll do the textual study of Sailing to Byzantium, and the very next video we'll go through the summary of Sailing to Byzantium. So let's start. So Sailing to Byzantium is a poem written by W.B. Yeats, and it was published in 1928. Though it was written in 1926 when W.B. Yeats was 60 or 61 years old. He was older already and has received the Nobel Prize in Literature. So Sailing to Byzantium is a poem written by W.B. Yeats in 1928, and it was published in his collection called The Tar. So here are three probable questions that may be asked in competitive examination. Sailing to Byzantium is a poem by W.B. Yeats, published in 1928. Which collection? The Tar. Next point to remember is it comprises of 4 stanzas. ये 4 stanza में लिखी हुई poem है, and its rhyme is Ottava Rima. Ottava Rima or Ottava Rima. Ottava Rima is a poem written in 8 lines. 8 लाइन में लिखी होती है, और ये there are rhyming couplets, and the rhyme is always A B, again A B, again A B, and C C. So rhyme scheme is A B A B A B C C, and it has iambic pentameter. It is always written in iambic pentameter. So the rhyme is Ottava Rima, rhythm is iambic pentameter. It consists of 4 stanzas. So here we have done 5 important points for competitive examination point of view. That Sailing to Byzantium is a poem written by W.B. Yeats, written in 1928, published in the collection The Tar, written in 4 stanzas. Rhyme scheme is Ottava Rima, and rhythm is iambic pentameter. Now let's come to the title. The title is Sailing to Byzantium. What is sailing? When we are traveling through water, maybe ship, maybe boat. So we call it sailing. So W.B. Yeats is willing to sail to which place? The place is called Byzantium. Place कौन सा है? Place है Byzantium. So now let's first know about what is this place Byzantium. Byzantium was the center of ancient Byzantine Empire, और इसको बाइजेंटाइन एम्पायर का जो सेंटर था इट वाज बाइजेंटियम, जिसका एंशियंट नेम है कॉन्स्टेंटिनोपल. अर्लियर कॉन्स्टेंटिनोपल वाज इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन क्रिश्चियन के हाथ में था. इन 1453 दिस कॉन्स्टेंटिनोपल प्लेस फेल इनटू द हैंड्स ऑफ टर्किश पीपल, और टर्किश लोगों के हाथ में ये चला गया. इन इंडिया जैसे हम लोग स्पिरिचुअल हब मानते हैं वाराणसी को, काशी इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल हब ऑफ इंडिया, सेम एज वन ऑफ द स्पिरिचुअल हब्स ऑफ इंडिया. वैसे ही एंशियंट यूरोपियन वर्ल्ड में दिस कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल हब, द हब ऑफ आर्ट, फॉर आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. तो सबका जो है उसको हब माना जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल. तो W.B. Yeats has written this poem when he is already 60 or 61 years old. बूढ़े हो चुके हैं. और जब आप मेचर होते हैं, when you go mature, when you go older, so what do you want? By and by you begin to understand the reality of the world. आप वर्ल्ड की रियलिटी को समझना शुरू कर देते हैं, और आप क्या स्ट्राइव करते हैं? आप स्ट्राइव करते हैं हायर ट्रुथ को जानने के लिए, और आप धीरे धीरे देखना शुरू कर देते हैं कि लोग जो है बहुत मंडेन है, बहुत अर्दी हैं, और बहुत अर्थ की चीज़ों में ही जुड़े रहना चाहते हैं. वो ना सीखना चाहते हैं, ना पुराने जनरेशन से कुछ सीखना चाहते हैं, ना कुछ नया करना चाहते हैं. और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये बात उनको क्या करती है? फ्रस्ट्रेट करती है, और इसीलिए लोग जो है सेंटहुड की तरफ जाना चाहते हैं. तो सेंटहुड डज नॉट मीन दैट यू हैव टू लिव इन जंगल्स. सेंटहुड का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको जंगल में ही रहना है. सेंटहुड इज़ अ मेंटल स्टेट जहाँ पर आप you strive for the better. Mentally you strive for the better. You want to know the more good things, more
इंटेलेक्चुअल थिंग्स, मोर स्पिरिचुअल थिंग्स। तो W.B. Yeats ऑलरेडी 1923 में उनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिल चुका था, और जब उनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिल चुका था एंड ही थ्रू आउट हिज लाइफ वर्क फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, सो व्हाट मस्ट ही बी एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नाउ ही हैज़ बिकम द मॉन्यूमेंट ऑफ द अनएजिंग इंटेलेक्ट। ये फ्रेज भी यूज़ किया है कि अब वो एक मॉन्यूमेंट है अनएजिंग इंटेलेक्ट के। तो अब लोग क्या करेंगे, उनको रिवर करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, दे विल बिकम द सिंगिंग मास्टर बट ऑफ देयर सोल। बट अब वो क्या देखते हैं कि ये जो यंग जनरेशन है वो जानवरों की तरह, फिश फॉल और क्रिएचर्स की तरह किस में बिजी है, सिर्फ रिक्रिएशन में, रिप्रोडक्शन में बिजी है, और वो कुछ भी पुराने जनरेशन से, ओल्डर जनरेशन से कुछ भी सीखना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में ये जो है, ही इज़ फेड अप विद दिस वर्ल्ड एंड ही इज़ विलिंग, नाउ ही हैज़ सीन इनफ ऑफ द वर्ल्ड एंड नाउ ही वांट्स टू एलिविएट फ्रॉम दैट स्टेट। वो ट्रांसेंडेंट करना चाहते हैं, वो हायर ट्रूथ को जानना चाहते हैं, और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाना चाहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है कहाँ जाएंगे, वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बाइजेंटियम जाएंगे। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये कोई फिजिकल जर्नी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ही हैज़ टेकन द बोट एंड रोविंग एंड गोइंग टू बाइजेंटियम, इट इज़ अ मेंटल जर्नी। तो यही होता है ना कि आप फिजिकली आप सेम ही रहते हैं, मतलब आप मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, फिजिकली आप सेम ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं और इंटेलेक्चुअल बनते हैं तो मेंटली जो है आप हायर ट्रूथ की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो है W.B. Yeats हैज़ ऑलरेडी, और इसी का कॉन्सेप्ट उन्होंने जायर, कॉन्सेप्ट ऑफ जायर में ही दिया है, जिसका इसमें भी एक टर्म यूज़ है। और उसके बाद फिर जब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड कमिंग, तो उसमें भी है टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। तो वो जायर एक रोटेटिंग सर्कल है जिसमें आप अबव और अबव जाते हैं, जैसे आप लाइफ के एक स्टेप से दूसरे स्टेप को पार करते हैं। तो अब W.B. Yeats जो है ऑलरेडी 61-62 ईयर्स के हो चुके हैं, वो हायर ट्रुथ को जानना चाह रहे हैं और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कहाँ जाएंगे, बाइजेंटियम जाएंगे। तो इस स्टैंजा में इस पोएम में जो 4 स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा जो है वो बताता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों जाना चाहते हैं। तो इसलिए जाना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो बहुत मंडेन है, वो बहुत अर्दी है, और कुछ ना उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ना उसमें सीखने के लायक कुछ भी है, और वो इससे थक चुके हैं। और नेक्स्ट स्टैंजा में वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो बाइजेंटियम जाएंगे तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ जो सेंट हैं वो उनको वेलकम करेंगे और उनको बॉडी से उठा करके उसको इटर्नल टाइम में ले जाएंगे, जहाँ पर वो एक आर्टिफाइस बन पाएंगे। तो क्या इसका क्या मतलब है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब देखें कि हम इस लाइन को एक बार रीड कर लें कि Sailing to Byzantium is a poem by W.B. Yeats, published in 1928 in the collection The Tar. It comprises of 4 stanzas written in ottava rima, each made up of 8 lines of iambic pentameter. This poem is a journey to Byzantium, Constantinople, and this poem is a metaphor for a spiritual journey. In this poem, Yeats explores his thought and muses on how, इसमें सोचते हैं कि इमॉर्टलिटी, आर्ट और ह्यूमन स्पिरिट जो है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हाउ मे दे कन्वर्स। अब इस पोएम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो जर्नी है वो फिजिकल जर्नी है या मेटाफोरिकल जर्नी है। तो ये मेंटल जर्नी है, मेटाफोरिकल जर्नी है, जहाँ पर मैन क्या परस्यू कर रहा है, अपना खुद का विजन परस्यू कर रहा है कि इटर्नल लाइफ कैसी होगी, और उनका कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज क्या है, और दो रिटन इन 1926, इट वॉज रिटन इन 1926 जब W.B. Yeats ऑलरेडी 60-61 ईयर्स के हो चुके थे। तो सेलिंग ऑफ बाइजेंटियम जो है Yeats का एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, किसके बारे में, बूढ़े हो चुके थे तो अगोनी ऑफ द ओल्ड एज, और उनका इमेजिनेटिव और स्पिरिचुअल वर्क है जो कि ये बताता है विच required to remain a vital individual even when his heart is fastened to a dying animal। तो उनका जो हार्ट है, उनकी जो बॉडी है वो डाइंग एनिमल। तो डाइंग एनिमल क्या होगा, बूढ़ा जो शरीर है, मरता हुआ जो शरीर है बॉडी के लिए है। देखिए यहाँ पे नाम चेंज है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, जब भी नेम चेंज होता है तो हम इसको मेटोनमी कहते हैं। तो ही इज़ अ मेटोनमी। तो वो बोलता है उनका जो बॉडी जो है वो डाइंग एनिमल से, जो सोल है जो डाइंग एनिमल से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी कैसे वो अपने हार्ट में और इंडिविजुअलिटी में स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये इनका सॉल्यूशन क्या है कि जब आप इस वर्ल्ड से परेशान हैं, जहाँ पर कोई आपको अप्रिशिएट जितना करना चाहिए नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोक्रिएशन में लोग जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में आप सिंग करने के लिए भी आपके पास कुछ है नहीं, तो आप क्या करें, इस कंट्री को छोड़ दें, लीव द कंट्री ऑफ द यंग, और कहाँ जाएं, बाइजेंटियम की तरह जाएं, ट्रैवल टू बाइजेंटियम।
जहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेजेस जो हैं शहर के, वो सेजेस ऑफ द सिटी जो कि फेमस गोल्ड मोज़ैक में है। अब देखिए मोज़ैक का मतलब क्या होता है, अगर दीवार के ऊपर कुछ कुरेदा हो गया हो, इफ़ देर आर द इंग्रेविंग्स ऑन द वॉल, तो वी कॉल इट मोज़ैक। एंड गोल्ड मोज़ैक, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस सेंट बीइंग इन गोल्ड मोज़ैक, कि सेंट जो है गोल्ड मोज़ैक में क्यों है। तो जब 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इन द हैंड ऑफ टर्क्स, जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो वॉज डिफिटेड बाय द टर्क्स, तो वहाँ का जो सेंटर था, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल का जो सेंटर था, दैट वाज अ चर्च कॉल्ड हेजिया सोफिया चर्च। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो है तब से बनी हुई है। तो बिफोर दैट इट वाज अ चर्च हेजिया सोफिया। पर जब टर्क्स ने वहाँ पे हमला किया, तो वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो डिवाइन लिटर्जी, मतलब भक्ति गीत वो गा रहे थे, दे वर सिंगिंग द शाम्स। तो क्योंकि दे डिड नॉट वांटेड टू बी प्रोसिक्यूटेड और कैप्चर्ड बाय द टर्क्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैक्रेड वेसल्स लिए और दीवार में जो है वो डिसअपियर हो गए। सब मैजिक, माइथोलॉजी हैज़ मैजिक। तो वो दीवार में डिसअपियर हो गए और ऐसा माना जाता है कि वो उसी दीवार में रहेंगे जब तक कि वापस वो हेजिया सोफिया चर्च, जो बाद में टर्क्स ने क्या बना दी, कैप्चर करके मॉस्क बना दी, मस्जिद बना दी, वापस जब तक क्रिश्चियन डूम नहीं आ जाता है वहाँ पर, और वापस वो हेजिया सोफिया चर्च जब तक चर्च नहीं बन जाती है, तो वो सेंट जो है वो वहीं पर रहेंगे और उसके बाद वो निकल करके आएंगे। तो इस कहानी का रेफरेंस जो है किस में है, टिमोथी ग्रेगरी ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बाइजेंटियम, उसमें है। तो यहाँ पर ये जो सेंट हैं, तो वो सेंट अभी भी जो है उस चर्च के, पहले हम लोग हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। तो इनिशियली हेजिया सोफिया चर्च वाज देयर, बाद में उसको मॉस्क बनाया गया। उसके बाद टर्की में रिलीजियस हार्मोनी के नाम पर हेजिया सोफिया चर्च वाज टर्न इनटू अ म्यूज़ियम। लेटली अभी हाल में ही ये हुआ है कि वापस उसको म्यूज़ियम से मॉस्क, मस्जिद बना दिया गया, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ बिटवीन द यूरोपियन एंड द अरब वर्ल्ड। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस हेजिया सोफिया चर्च। तो हमें यहाँ पर जानना ये है कि ये जो सेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेंट जो कि चर्च की दीवार में चले गए थे, तो वो किसके फॉर्म में वहाँ पर अभी हैं, वहाँ पर वो फॉर्म में है मोज़ाइक फायर फ्लिंट्स के फॉर्म में। फायर होता है ना, फायर ऐसे जो चल रही है, तो फायर फ्लिंट्स के फॉर्म में, गोल्डन फॉर्म में वो दीवार पे ऐसे हैं, कुरेदे हुए दीवार पे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो सेंट हैं वो दीवार से निकलेंगे, और वो रात को घूमते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो सेंट जो है वो दीवार से निकलेंगे और आके इनका दे बिकम देयर सिंगिंग मास्टर, वो इनको सिखाएंगे और इनके बॉडी को जो है कहाँ ले जाएंगे, इनको बॉडी से उठा करके इटर्निटी में ले जाएंगे, जहाँ पर वो टाइम के बाउंड्री से जो है बाहर निकल जाएंगे, और ही विल बिकम द आर्टिफाइस थिंग आर्टिकल ऑफ इटर्निटी, वो इटर्निटी का एक आर्टिकल बन जाएंगे। तो व्हाट डज इट मीन, देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ही होप्स, हु होप्स, W.B. Yeats होप्स दैट द सेजेस विल अपीयर इन फायर, सेजेस जो है वो फायर में अपीयर होंगे, क्यों, हमने ऑलरेडी रीड कर लिया। एंड टेक हिम अवे फ्रॉम हिज बॉडी इनटू द एग्जिस्टेंस आउटसाइड टाइम, वो उसको टाइम से अबव के एग्जिस्टेंस में ले जाएंगे और क्या बना देंगे, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। और वो जो है किस में एग्जिस्ट करेंगे, द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक बार यहाँ समझ लेते हैं, बाद में पोएम में भी समझेंगे कि जब हम कहते हैं कि वी लेट्स रीड शेक्सपियर, चलो शेक्सपियर को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम शेक्सपियर का वर्क पढ़ रहे हैं। तो शेक्सपियर जो है अब वो टाइमलेस हो गए, सेंट ने, गॉड ने उनको टाइमलेस बना दिया, और वो एक ह्यूमन बीइंग से किस में चेंज हो गए, एक आर्टिफाइस में चेंज हो गए, एक आर्टिकल में चेंज हो गए। तो पोइट्री इज़ एन आर्टिकल, दो इज़ एब्स्ट्रैक्ट बट इज़ एन आर्टिकल, तो वो आर्टिफाइस बन गए। तो ऐसे ही W.B. Yeats भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, और सेंट जो है उनके माइंड को, उनके स्पिरिचुअल जर्नी में वो उनको इतना अपलिफ्ट करेंगे कि वो किससे किस में चेंज हो जाएंगे, ह्यूमन बॉडी से चेंज हो जाएंगे आर्टिफाइस में, जो कि कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, इटर्निटी तक एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज अ लाइन। Now the next line is, there is a reference to the legend that we have already discussed of legend, एक legend है, that when Turks entered the church Hagia Sophia in 1453, the very year when the Constantinople fell at the hand of Turks, the priests who were singing the divine liturgy took up the sacred vessels and disappeared into the wall of the church, where they will stay and only come out when the church is returned to Christendom. अब इस पोएम के लास्ट स्टैंजा में क्या होता है, यहाँ पे W.B. Yeats क्लेम करते कि एक बार वो अपनी बॉडी से निकल गए, मतलब एक बार उन्होंने अपने धरती से मोह माया को छोड़ दिया, तो वो अपने
बॉडी में वापस कभी नहीं आएंगे, नेचुरल चीज़ों कभी वो नेचुरल चीज़ों के फॉर्म में नहीं आना चाहते हैं, वो एक गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन बर्ड और गोल्डन बॉय जो है अंडरवर्ल्ड का पूरा रेफरेंस है एनियट से, जिसके अंडर हम लोग को नहीं जाना, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सिर्फ हमें याद रखना है यहाँ पे एक पॉइंट कि WB यीट्स जो है क्या बनना चाहते हैं, तो हमें याद रखना है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम अ गोल्डन बर्ड, ठीक है। सो ही क्लेम्स दैट वंस ही इज आउट ऑफ द बॉडी ही विल नेवर अगेन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल थिंग्स, रेदर वो क्या बनेंगे, एक गोल्डन बर्ड बनेंगे, जो कि कहाँ पर बैठेगी, गोल्डन ट्री पे बैठेगी। वहाँ पर है आगे पोएम में है कि वो एम्परर के लिए गाएगी, तो हु इज एम्परर, एम्परर इज द गॉड। और वो किसके बारे में गाएगी, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो देयर आर 2 क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, दैट व्हाट डज WB Yeats want to become? So WB Yeats want to become an artifice rather than a human body. And what does he want to become? He want to become a golden bird. And what he wants to sing about? क्या गाना चाहते हैं? About the past, about the present, मतलब that is passing, and about the फ्यूचर। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि एंशियंट वर्ल्ड में पोएट्स जो हैं दे वर कॉल्ड सीयर, सीयर SEER, सीयर, सीयर मतलब होता है भविष्य वक्ता, ठीक है, जो द वन हु कैन सी इज कॉल्ड सीयर। सो द वन इट वॉज कंसिडर्ड, इट वॉज बिलीव्ड कि जो पोएट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू रीच इन टू दैट हायर लेवल ऑफ स्टेट, मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट, वेयर ही बिकम अ सीयर एंड ही कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे एक गोल्डन बॉ का रेफरेंस है, ये हमें याद रखना है कि ये जो गोल्डन बॉ का रेफरेंस है ये माइथोलॉजी से लिया गया है। किस वर्क से, एनियड वर्क से। और एनियड वर्क जो है वो रोमन पोएट वर्जिल ने लिखा है। और इस पोएम में प्रॉस्परपिना जो है वो ट्रोजन हीरो, ट्रॉय का जो हीरो था एनियस, उसको एक गोल्डन बॉ देती है ताकि वो गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड मतलब पताल लोक में जा सके। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। तो just roughly to revise that Sailing to Byzantium is a poem written by WB Yeats, published in 1928 in the collection The Tar. It has 4 stanzas written in Ottawa Rima. It has 8 lines of iambic pentameter. In the poem there is a metaphorical or mental journey to Byzantium. Byzantium is the ancient city. Constantinople, it was considered the spiritual hub of the ancient world. This poem, Sailing to Byzantium, we already discussed, is a spiritual journey, and it has a man's pursuing of his own vision of life, eternal life, and the concept of paradise. When did he write it? Though it was published in 1928, he wrote when he was in 1926, when he was 60 or 61 years old. He had already received Nobel Prize by then in 1923. And this poem discusses about the agony of old age and the imaginative spiritual work that is required to remain a vital individual. एक vital, आप as an individual जो है vital है, मुख्य है, in spite of the fact कि आपका जो heart है, आपका जो दिल है, आपका जो सोल है, इट इज़ फास्टेंड टू द डाइंग एनिमल, मतलब हमारी बॉडी से फास्टेंड है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं दे नेवर बिकम ओल्ड, वो कभी ओल्ड नहीं होते, वो हमेशा यंग रहते हैं। तो हार्ट इज़ ऑलवेज यंग, तो द बॉडी इज़ डाइंग। अब यीट्स जो है व्हेन ही इज़ अनसेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट मंडेन कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन है कि लीव द कंट्री ऑफ द यंग और बाइजेंटियम की तरफ चलो। तो ये क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, इसका मतलब कि भाई दुनिया में जो जहाँ है वहीं रहेंगे, बट मेंटली आप उनको छोड़ दीजिए और हायर ट्रुथ की तरफ जाइए। और वो बाइजेंटियम में जाकर के गोल्ड मोज़ाइक में जो सेंट है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके सोल के सिंगिंग मास्टर बने, मतलब वो उनको सिखाएं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो मेंटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, हायर ट्रूथ ढूंढने के लिए चले जाएंगे, तो हमारे हिंदी में बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो वो जब बाइजेंटियम जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुरु जो हैं, सेजेस जो हैं, उनके सामने अपीयर होंगे और वो उनकी बॉडी को जो है ले जाएंगे, मतलब उनके स्पिरिट को ले जाएंगे कहाँ? एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम के बियॉन्ड, जहाँ पर वो एक आर्टिफाइस बन जाएंगे इटर्निटी के। मतलब वो WB Yeats एज अ बॉडी नहीं रहेंगे, WB Yeats एज अ पीस ऑफ आर्ट रहेंगे। तो ये सच भी है कि नाउ वी नो WB Yeats ही इज़ डेड मैनी ईयर्स अगो, डिकेड्स अगो, बट स्टिल वी रिमेंबर हिम थ्रू हिज आर्ट। और इस पोएम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो गोल्ड मोज़ाइक में जो सेंट है उसका रेफरेंस कौन सा है? हेजिया सोफिया चर्च है। और इस पोएम में हमने डिस्कस किया कि वो क्या बनना चाहते हैं, बॉडी को छोड़ करके गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं, जो किसके बारे में गाएंगे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में गाएंगे। गोल्डन बुक का रेफरेंस कहाँ से है? एनियड बुक से है, रिटन बाय वर्जिल।
तो दिस मच वी हैव डन इन दिस वीडियो। और सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये बाइजेंटियम की तरफ सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो सीक्वेंस है पोएम का वो है बाइजेंटियम, जहाँ पर वो बाइजेंटियम पहुँच जाएंगे और जो वो विटनेस कर रहे हैं मेंटली उसका डिस्क्रिप्शन वो पोएम में करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द टेक्सचुअल स्टडी ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।